ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर। इन शॉर्ट रिवाइज करते हैं। व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम, व्हाट इज रेक्टिफायर? एक्चुअली द रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट AC input into DC output. Why it is necessary? Because in our home appliance, in our home the appliances need a DC power supply only. Okay, so the block diagram contain what? Transformer first, AC mains, after that transformer, after that a filter circuit and voltage regulated power supply. So one by one we have to study that block diagram. First we have to study what is rectifier. So there are three main types: full wave, half wave and bridge. But in this year, that is in 12th standard, you have to study only two types, that is half wave and full wave. In last lecture we see about half wave rectifier. What is the problem in half wave rectifier? It only gave a output after particular time interval, means only in a positive half cycle. Means if 1 minute of positive half cycle is there, again there is a 1 minute of negative half cycle. So no output is there. Again for 1 minute output is there. Again for 1 minute output is blocked. Okay. So there is a problem in half wave rectifier. What is the problem? We can't get a continuous output. But for a proper running of our appliances, we need a continuous DC output. As the symbol indicate, AC means like this in the form of sine wave and DC means straight line. इन लास्ट ईयर प्रैक्टिकल में हमने मल्टीमीटर पढ़ा था, उस पे सिंबल बने हुए हैं। ऐसा एक सिंबल है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? AC करंट, AC का वोल्टेज कैलकुलेट करता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन बनी होती है वहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? DC करंट और DC वोल्टेज कैलकुलेट करता है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी फुल वेव रेक्टिफायर। As the name indicate, full wave rectifier means यहाँ पे क्या होने वाला है? दोनों भी, for negative half cycle and for positive half cycle, हमको क्या मिलने वाला है? वहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म मिलने वाली, मीन्स करंट पास होने वाला है। So if this is the input waveform, now see the circuit diagram. Again circuit diagram is most important. Here what? AC mains, यहाँ से क्या आ रहा है? Power supply. This is what? Transformer T. What is the use of transformer? It is used to convert low voltage to high voltage or high voltage to low voltage. Okay. Now again this terminal is S1 and this terminal is S2 of transformer. Here some changes are there rather than half wave rectifier. In half wave rectifier only one diode is used, but in full wave rectifier we use two diode here. That is diode D1 and diode D2. Okay. So again this is P region, this is N region, this is P region and this is N region. हम PN जंक्शन डायोड क्या होता है हमको पता है। व्हाट इज द बायसिंग, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस पता है। बेसिक चीज क्या याद रखना है कि PN जंक्शन डायोड ओनली वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, मींस ओनली इन फॉरवर्ड बायस करंट विल पास। रिवर्स बायस वो क्या करता है? करंट को ब्लॉक करता है। तो अभी इन हाफ वेव रेक्टिफायर हमने क्या किया था? यहाँ पे लगाया था लोड रेजिस्टेंस। वी हैव अ लोड रेजिस्टेंस हियर ओनली। अगर हमने इसमें भी ऐसे ही लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? Because if S1 is positive and accordingly S2 is negative, अगर S1 positive है तो S2 क्या होगा? Negative होगा। अब सोचो S1 P को जा रहा है, मीन्स ये वाला डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस है। करंट कहाँ से पास होगा? यहाँ से। यहाँ पे हमने लगाया है लोड रेजिस्टेंस। करंट का डायरेक्शन क्या है? यहाँ से जाके वो ट्रांसफॉर्मर में जाएगा। बट at the same time, if S1 is positive, this S2 is negative. So for diode D2, positive terminal is connected to negative terminal of the battery. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो करंट को यहाँ से करंट D1 से करंट पास होगा थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस, को यहाँ से पास होके दिस डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस, वो क्या कर देगा? करंट को ब्लॉक कर देगा और हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। हमने क्या किया? वी फॉर्म अ जंक्शन हियर। D1 का निगेटिव टर्मिनल और D2 का निगेटिव टर्मिनल हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। ओके, ये दो टर्मिनल को हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे एक हमने जंक्शन वायर क्रिएट किया और यहाँ पे हमने दिया है उसको लोड रेजिस्टेंस एंड दिस लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू दी ट्रांसफॉर्मर। कनेक्ट किया हमने किसको? ट्रांसफॉर्मर को। व्हाई दिस जंक्शन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी नीड बोथ डायोड इन वर्किंग। वो दोनों डायोड वर्किंग में चाहिए भी। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया लोड रेजिस्टेंस तो क्या होगा? करंट विल पास थ्रू दिस डायरेक्शन एंड ब्लॉक हियर, बिकॉज दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, दिस इज इन रिवर्स बायस। ये होने वाला है। अगर ये फॉरवर्ड में तो ये रिवर्स में होगा, ये फॉरवर्ड में तो ये रिवर्स में होगा। ओके, सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ सेंट्रल टैप अरेंजमेंट। अंडरलाइन करो, बुक में आपके दिया है वही।
दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रल टैप अरेंजमेंट। अगर आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा तो उसको 3 वायर्स रहते हैं, वन इज S1, वन इज S2 एंड थर्ड वन इज सेंट्रल टैप। सेंट्रल टैप कब यूज करना है? व्हेन वी आर यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हमको हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करना है तो थर्ड वायर का कोई जरूरत नहीं है। बट इफ वी आर यूजिंग अ फुल वेव रेक्टिफायर देन वी हैव टू यूज दैट ट्रांसफार्मर व्हिच हैव अ 3 वायर which S1, S2 and this central tap wire is neutral. It has no charge. S1 have the charge according to the cycle of the transformer. So now see what is working. ये समझ में आ गया सर्किट डायग्राम everyone? Okay. Now see what is the working of transformer. Now we know that AC input which is in the form of wave. AC input which is in the form of what? Wave. So when AC input is going to the transformer, it passes to S1. Suppose that during the positive half cycle, S1 is positive and S2 is what? Negative. S1 is positive and S2 is negative. Then though during positive half cycle, S1 is positive, S2 is negative. Now that is means what? S1 is connected to, which is positive, to P terminal of the diode D1 and N is also obviously connected to negative terminal. Okay. So ये positive को connect है and this is junction. So this diode D1 is in forward bias. So this diode D1 is in what? Forward bias. तो current यहाँ से pass होगा through S1 D1. Suppose this terminal is named as A. This junction is C. आपकी बुक में कोई और नाम दिए होंगे. You can give any name. But when you are writing about the working of this circuit, you have to mention the path for both the positive half cycle and negative half cycle. तो वो आंसर आपका वैलिड है. So what is the path? S1 D1 A. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? जंक्शन फॉर्म किया है हमने. नॉर्मली यहाँ से वो करंट पास होता है, लेकिन दिस डायोड इज इन व्हाट? रिवर्स बायस. तो यहाँ तक तो करंट ब्लॉक है, यहाँ से करंट आगे पास नहीं हो सकता है. सो current will take this direction. Current कहाँ से flow होगा? In this direction through this load resistor toward the transformer through the center tap arrangement. Okay. So this is for diode D1. So what is the output waveform then? For positive half cycle we get a current here through diode D1. डायोड D2 अगर रिवर्स बायस में है तो भी हम लोग को क्या मिल रहा है? थ्रू पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 के थ्रू करंट मिल रहा है. सो दिस इज व्हाट योर waveform of DC output. Okay. Now next. Now in negative half cycle reverse होता है. S1 is what? Negative. S2 is what? Positive. अभी for negative half cycle S1 is negative, S2 is what? Positive. अभी क्या हो रहा है? S1 connected to P means negative है वो. Means this diode D1 is in reverse bias mode. अभी ये करंट को ब्लॉक कर देगा. But this through S2 P connected to positive. So this diode D2 is in forward bias mode. Means ये क्या करेगा? करंट कंडक्ट करेगा. So ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ से करंट जा रहा है. इधर तो पूरा रीजन ब्लॉक है D1 का because it is in reverse bias. So करंट का डायरेक्शन अगेन क्या होगा? Through this central tap arrangement. So again for negative half cycle we get a output waveform. ये हो गया. This is your positive and negative. This is your one cycle, total cycle of AC signal. So this is positive and this is negative. So for positive you will get output, for negative also you will get output. Means we get a continuous output here जो हमको चाहिए था. किसी भी पावर सप्लाई को या किसी भी अप्लायंस को वर्क करने के लिए जो हमको चाहिए था वो क्या था? कंटिन्यूअस डीसी आउटपुट. वो हमको क्या है? यहाँ पे मिल रहा है. ओके. सो नाउ path क्या होगा? Path is more important. What is the path of these two cycle? For positive half cycle, what is the path? First S1, D1, A, C, RL. Okay. RL और आप यहाँ पे भी सेंटर टैप अरेंजमेंट को भी यहाँ पे कुछ एक नाम दे सकते हो. Called it as a B. नहीं दिया तो भी चलेगा. You can write only. What is the path? S1, D1, A, C and RL. This is the path for first half cycle. S1, D1, A, C and RL. This is the path for positive half cycle. What is the path for negative half cycle then?
इट इज S2 D2 C थ्रू RL। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा बिकॉज इट इज इन फॉरवर्ड बायस, वो यहाँ पे जाएगा, ऊपर हो जा नहीं सकता है बिकॉज डायोड D1 ने क्या करके रखा है, करंट को ब्लॉक किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? बिकॉज इट इज ए रिवर्स बायस। सो करंट कहाँ से पास होगा? अगेन इट इज पासिस थ्रू अ सेंट्रल टैप अरेंजमेंट। सो बोथ डायोड क्या हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। For positive half cycle diode D1 is working, for negative half cycle diode D2 is working. So we get a continuous output here. For again next period of cycle, for positive we get output, for negative also we get output. ऐसे ही वो क्या होता रहेगा, continuous DC output मिलता रहेगा। That's why the full wave rectifier is more efficient. मैंने आपको last time बोला था कि half wave rectifier is 40% efficient only. लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40% इफिशिएंट ओनली, बट फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर इफिशिएंट देन हाफ वेव रेक्टिफायर। आपके इसमें पेज नंबर 346 पे एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर दिया है, इंपॉर्टेंट टिक करो उसको, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, वेवफॉर्म ऑफ इनपुट आउटपुट, जो 4 वेवफॉर्म बनाई वो नहीं बनाए तो भी चलेगा। इफ यू ड्राइंग इनपुट वेवफॉर्म लाइक दिस एंड ओनली आउटपुट वेवफॉर्म लाइक दिस तो भी करेक्ट है। वो 4 वेवफॉर्म के फॉर्म में दिखाना है, इट इज नॉट कंपल्सरी। आप सिर्फ हमें मेंशन कर रहे हो कि इट इज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इट इज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, सो दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस इज व्हाट 81.2%। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस rectifier is what 81.2%. compare this to 40% efficiency इसका, this is what 81.2. now समझ में आया ये फुल वेव रेक्टिफायर? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इन फुल वेव रेक्टिफायर? ओके, नाउ अगेन अब हमारा सेकंड पार्ट तो हो गया, रेक्टिफायर हमने लगाया था ब्लॉक डायग्राम के। ओके, हमने रेक्टिफायर को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट पार्ट ट्रांसफार्मर के बाद क्या था, फिल्टर। तो व्हाई वी यूज दैट फिल्टर? फिल्टर हमको क्यों यूज करना है? मैंने बताया था कि हमको कंटिन्यूअस और स्मूथ डीसी चाहिए, हमको ये ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, हमको प्लेन डीसी आउटपुट चाहिए। ठीक है, समझो अगर मैंने अभी फुल वेव रेक्टिफायर कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे आउटपुट को क्या लगा दिया, रेडियो कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, we know that radio needs a proper frequency signal. रेडियो का फ्रीक्वेंसी करेक्ट होगा तो ये हमको क्लियर सुनाई देता है। हमने सुना है अगर बहुत डिस्टर्बेंस अगर आता है रेडियो में तो वो प्रॉपर हमको सुनाई नहीं देता है। सो इफ आई कनेक्टेड दिस रेडियो हियर, और मैंने यहाँ पर रेडियो कनेक्ट कर दिया है, इस सर्किट में मैंने फिल्टर यूज नहीं किया, दिस ओनली अ ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। बट रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है, वी हैव टू यूज अ फिल्टर, वी हैव टू यूज अ वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई। सो अगर मैंने यहाँ पर रेडियो कनेक्ट कर दिया है, so मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा रेडियो का? इफ आई स्विच ऑन दैट रेडियो, so I will get a output like this, disturbance, sometimes plain, sometimes like heartbeats. Why it is happening? Because जैसे मैंने बताया था ब्लॉक डायग्राम में कि when we are doing a electronic circuit, तो यहाँ पे possibilities है कि थोड़ा सा AC component मीन्स जो AC सिग्नल है उसका कुछ पार्ट आउटपुट में आपको मिले, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है। यहाँ पे हमको प्योर डीसी नहीं मिल रहा है, प्योर डीसी वी डोंट हैव अ प्योर डीसी सिग्नल हियर। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स अ सम अमाउंट ऑफ एसी सिग्नल इन इट, सो दैट्स व्हाई दिस आउटपुट इज नॉट स्ट्रेट, जो हमको चाहिए कंटिन्यू। तो इसको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना है, फिल्टर सर्किट यूज करना है। तो ये जो डीसी एसी आउटपुट आता है ना बीच में, उसको क्या बोलते हैं, रिपल। दैट डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिपल। रिपल फैक्टर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है आपके इसमें, डेफिनेशन सिर्फ उसका ध्यान में रखो। आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसी कंपोनेंट अलोंग विद डीसी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिपल। उसको क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। नाउ दिस रिपल इज अनडिजायरेबल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द रेक्टिफायर आउटपुट। लाइक मैंने बोला कि रेडियो कनेक्ट किया है, रेडियो हमको प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों? बिकॉज इट कंटेन अ एसी सिग्नल, बट दैट रेडियो ओनली नीड्स व्हाट, डीसी आउटपुट, but that DC output also contains some component of AC signal, so that's why हमको properly सुनाई नहीं दे रहा है। so वो रिमूव करने के लिए हमको क्या यूज करना है, वहाँ पे फिल्टर सर्किट वी हैव टू यूज। ओके, नाउ वी हैव टू सी अ फिल्टर सर्किट। एक रिपल फैक्टर का फॉर्मूला दिया है, वो अंडरलाइन बॉक्स कर लो, इंपॉर्टेंट टिक करो उसको। व्हाट इज द रिपल फैक्टर?
द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC component टू द वैल्यू ऑफ द DC component मीन्स RMS वैल्यू. So ripple factor is equals to root mean square value of the AC component and divided by value of the DC component. मीन्स कितना परसेंट का रिपल आया है सर्किट में. हम अगर फाइंड आउट करना है तो न्यूमेरिकल जब हम पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स आते हैं कि इफ देयर इज वन सर्किट और वन मोबाइल चार्जर इज देयर, इफ यू कनेक्टेड इट so it contains some amount of AC signal and some amount of DC signal. तो हमको क्या करना है, what is the ripple factor? So we can use this formula. Ripple factor is equals to RMS value of AC component divided by value of DC component. Okay. Now we have to study a filter circuit now. See, फिल्टर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम में क्या है, दो इनपुट टर्मिनल्स है. रेक्टिफायर हमको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ओनली वी हैव टू ड्रॉ वन ब्लॉक. हमको दिखाना है कि वो कनेक्टेड है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है. आफ्टर दैट हियर वी यूज अ कैपेसिटर. व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर अ चार्ज. कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है. सो वी हैव टू मोस्टली हम लोग बहुत देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फिल्टर, बैंडविड्थ फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी ओनली अ कैपेसिटर filter. So connect this filter in these two terminals. Make sure that when you draw the symbol of capacitor, these two lines, जो आप ये दो लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए. अगर ये लेंथ ऊपर नीचे हो गई, दिस इज नॉट अ कैपेसिटर, दिस इज अ बैटरी. ये बैटरी का सिंबल होता है. सो कैपेसिटर का सिंबल ड्रॉ करते हो, जो भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, देखा सिमेट्रिकल एंड इक्वल. ये ध्यान में रखना है सिंबल ड्रॉ करते हो. इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो सिंबल इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ अगेन आउटपुट अगर हमको चाहिए तो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा लास्ट में. दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस. ओके, दिस इज योर कैपेसिटर. कैपेसिटर एज अ पोलैरिटी, रेजिस्टेंस पोलर नहीं होता है, रेजिस्टेंस को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, बट कैपेसिटर हैव अ पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल. अगर डिवाइस आपके पास है कैपेसिटर तो देयर आर टू पिन्स आर देयर. दो एक वायर्स होते हैं, उसको जो बड़ा वायर है दैट इज पॉजिटिव एंड जो छोटा है वो निगेटिव होता है. ओके, हियर पॉजिटिव एंड निगेटिव, दिस इज व्हाट अ कैपेसिटर. नाउ देयर इज वन सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक रेक्टिफायर है, सॉरी मेरे पास एक रेजिस्टर है एंड वन कैपेसिटर इज देयर. One capacitor is there. So which circuit or which device is used for which store AC signal and DC signal? कौन से इसमें वर्क करेगा? अभी डायग्राम जो दिया आपकी बुक में पेज नंबर 346 पे, उसमें एक चीज ऐड करो, दिस ग्राउंड सिग्नल. ये दिख रहा है आपको नीचे, ग्राउंड टर्मिनल ऐड किया है मैंने, वहाँ पे डायग्राम में गिवन नहीं है. कैपेसिटर के लाइन को नीचे एक्सटेंड करो और ग्राउंड टर्मिनल ये करो, उसको ड्रॉ करो. ग्राउंड मीन्स क्या ड्रॉ करोगे, डिसेंडिंग लाइंस. ओके, बता दो इसका यूज क्या है ग्राउंड टर्मिनल का, यहाँ पे हो क्या रहा है कैपेसिटर के साथ. अभी जैसे रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. रेजिस्टर देयर इज पोलैरिटी कुछ भी नहीं है, उसको पॉजिटिव नहीं निगेटिव नहीं, हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू. वो करंट को क्या करते हैं, रेजिस्टर क्या है, डिवाइस है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. हमको जितना करंट चाहिए वो उतना ही आगे पास करेगा. व्हाट कैपेसिटर्स डू, इट स्टोर्स अ चार्ज. कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है. ओके, मींस रेजिस्टर क्या है, फ्लक्चुएशन नहीं दे रहा है, हम जैसे उसको यूज कर रहे थे वैसे यूज हो रहा है. मींस रेजिस्टर क्या है, डीसी कंपोनेंट है. रेजिस्टर इज व्हाट, इट इज अ डीसी कंपोनेंट, बट कैपेसिटर इट इज अ एसी कंपोनेंट. ओके, कैपेसिटर पे वैल्यू भी लिखी होती है बहुत बार, आपने अगर देखा होगा ध्यान से उसको, तो कैपेसिटर इज व्हाट, एसी कंपोनेंट. मीन्स अभी क्या हो रहा है, देखो क्यों बता रही हूँ मैं ये सब चीजें, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या ज्वाइन किया है, कैपेसिटर ज्वाइन किया है. सिंपल चीज ध्यान में रखो. ओके,